Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our presentation topic is role of ICT in agriculture, and the members are Sadaf Riaz, Sitara Shehbaz, Abdullah Javed, Rana Usman Khan, Mudassir Akram, Sikandar Ali, Muhammad Umair, and Salman Anwar. So this is Sadaf Riaz, 2020 AG3454, and the topic which I'm gonna represent is why is there need of ICT in agriculture. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसमें हमें किस तरह के मसाइल पेश आते हैं और हम उनको कैसे ओवरकम करते हैं। ज़राअत की हैसियत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की तरह है और तमाम शोबों की तरक्की का दारोमदार भी ज़राअत के शोबे पर है। मुल्क की मईशत के लिए इसे मज़ीद बेहतर बनाना और इसमें जिद्दत लाना बहुत अहम है, इसलिए कि ज़राअत को बेहतर बना कर ही हम आवाम को खुशहाल कर सकते हैं। हमारे मुल्क की 75% से ज़ायद आबादी ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है। मुल्क के मजमूई कौमी पैदावार में ज़राअत का हिस्सा 21% है और ये शोबा मुल्क के 45% लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया है। पाकिस्तान की बरामदात से हासिल होने वाला ज़र मुबादला का 45% हिस्सा ज़रई तिजारत से हासिल होता है। That's why agriculture holds great significance for Pakistan, and this sector is not only important for Pakistan but also at international level, as it provides us healthy food on our table and fodder for livestock. Next हम देखते हैं deficiency of food. पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है. So the increased demand for food grains can be met only with sincere efforts in agriculture, research and extension. In spite of large share in Pakistan economy, agriculture is lagging behind many aspects characterized by poor connectivity, disintegration of market, unreliable and delayed info to farmers, small land holdings, non-adaptation of improved technology, and optimum price of farm products. पाकिस्तान के कुल रकबे में से 23.7 मिलियन एकड़ ज़राई रकबा है, जो कुल रकबे का 28% हिस्सा बनता है, और इसमें से भी 8 मिलियन एकड़ ज़ेर काश्त ना होने की वजह से बेकार पड़ा है। हालांकि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है और यहाँ का मौसम और आबो हवा इतना खुशगवार है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं ताकि हमारा मुल्क ग़ज़ाई इजनास में खुद कफ़ील हो सके। नेक्स्ट, लेट्स डिफ़ाइन ICT. ICT refers to technologies that provide access to information through telecommunication mediums such as radio, newspaper, TV, cell phone, computer, social networking websites, etc., which have made it possible for users across the world to communicate with each other and to give users quick access. IT is most important in agriculture in this digital era because even farmers are educated and even they know how to browse the internet to get some information. So it's creating wonders and even more progress. That's by developing weather forecasting app, crop modeling, crop pattern, farm management, electronic sensors and identification systems. There's a lot of scope for IT in the field of agriculture to make agri more precise and economical. Today's agriculture uses sophisticated tools such as robots, temperature and moisture sensors, aerial images, GPS systems, GIS software, and many more. These robotic systems allow agri-business more profitable and efficient. एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में मशीनरीज़ का आना एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। हम देखते हैं कि हर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट तरह की मशीनरी और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर, फील्ड कल्टीवेटर, सीडर्स एंड प्लांटर, प्लो, बेलर, हैरो एंड मोर। यहाँ पर भी डिफरेंट तरह की मशीनरी दिखाई गई है जिनका डिफरेंट पर्पस है। फॉर एग्जांपल कल्टीवेशन के लिए प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, जिससे हम अपना बहुत सा टाइम और एनर्जी सेव करते हैं। After planting, other agricultural machinery such as self-propelled sprayers can be used to apply fertilizers and pesticides. अपनी क्रॉप्स को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हम डिफरेंट तरह के इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और फंजीसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। और बहुत सी और भी चीज़ें लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कूलिंग फैसिलिटीज़, जेनेटिकली प्रोड्यूस प्लांट्स, डेवलपिंग ऑफ एनिमल फीड्स, दीज आर आल्सो द एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी. Advancement in agri practices. Technology can answer most difficulties farmers face. It can assist them with predicting climate all the more precisely, decrease the use of water, increase the yield and their net profit margins. Big data can give information they have to create high quality desirable crops. जितनी ज़्यादा हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा फार्मर्स की इनकम होगी और इतनी ज़्यादा ही हमारे पास रूरल और अर्बन एरियाज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी.
Next, we see linkage between agricultural IT and extension education, जो कि एक बहुत अहम चीज़ है. So, the extension agent is responsible for providing the knowledge and information that will enable a farmer to understand and make a decision about a particular innovation and then for communicating that knowledge to farmers. एक्सटेंशन वर्कर्स का काम होता है कि वो फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स को टीच करें ताकि वो खुद की मदद कर सकें. दे लिंक फार्मर्स विद रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स एंड सर्विसेज. जितने भी एक्सटेंशन वर्कर्स हैं उनको चाहिए कि वो अपनी एक्सीलेंट स्पीकिंग स्किल्स के साथ उनको कन्विंस करें, वो ट्राई करें टू अराउज पीपल टू रिकॉग्नाइज एंड देन टेक इंटरेस्ट इन देयर प्रॉब्लम्स. जब तक वो पूरे इंटरेस्ट के साथ उनकी प्रॉब्लम्स को लिसन नहीं करेंगे और उनके सोल्यूशंस नहीं बताएंगे, उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं सिखाएंगे, तो फार्मर्स बिल्कुल भी उनकी बात में कन्विंस नहीं होंगे. So as we know that extension aims to increase production and then increase living standard of farm family. इस तरह farmers को भी satisfaction होती है और उनको pride होता है अपनी achievements पर. At last, I'd like to say IT has changed farming into a real business. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Mudassar Akram, as described above by my fellow Sadaf Riaz. Now I am going to highlight the applications of ICT in the field of agriculture. So without any wasted of time, let's get started. So let's have a look at the salient features by using ICTs in the field of agriculture. Point number 1. By using ICT in the very field of agriculture, one can enhance the production, stability, variety and other related aspects. अगर हम ICT को एग्रीकल्चर की फील्ड में इस्तेमाल करते हैं तो इससे जितनी भी पैदावार है, जो स्टेबिलिटी, वैरायटी और इस तमाम जितने भी इससे मुंसलिका चीज़ें हैं, हम उनको अच्छी तरह बूस्टअप कर सकते हैं और ये सब ICT की बदौलत है. पॉइंट नंबर 2. ICT हमें जितनी भी डिजीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हैं, इनके बारे में पहले से ही हमें वार्निंग दे देती है कि प्रोडक्शन को किस तरह इन्हांस किया जाए, इसको किस तरह बढ़ाया जाए, इन सब को किस तरह मेंटेन रखा जाए, इसको जैसे एक स्टडी फ्लो में रखा जाए. ये सब कुछ ICT में डिस्कस कर लिया रहता है. इस तरह अगर हम ICT को एग्रीकल्चर की फील्ड में डिस्कस करें, ICT की फील्ड को अगर हम एग्रीकल्चर में अप्लाई करें तो हम काफ़ी हद तक मतलब इस जो हमारी प्रोडक्शन है, जो जितने भी इसके मतलब रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम काफ़ी हद तक बूस्टअप कर सकते हैं. ना पॉइंट नंबर 3. We can also get market updates and other related trends by using information communication technologies. मार्केट में जो ट्रेंड जा रहा है, जो मार्केट में जो ट्रेंड जा रहा होता है, जो भी है मतलब कि मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट में कमोडिटीज़, कंज्यूमर ट्रेंड्स जो भी हैं, ICTs हमें इनके बारे में अप टू डेट रखती हैं. Of ICTs and agriculture. By using agriculture in the modern world, we can strengthen the capacity, infrastructure, projects, and we can better represent their constituencies. By negotiating input and output prices, land claims can also be solved by referring communication technologies. अगर हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ मतलब इनके जितनी भी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर उनको हम एग्रीकल्चर की फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, तो जितनी भी मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ वगैरह, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, इनपुट एंड आउटपुट प्राइसेस, लैंड क्लेम्स और जो भी मतलब रिसोर्स राइट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब प्रोजेक्ट्स, जो भी मतलब जो कॉस्ट वगैरह है, उसको हम काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से हैंडल आउट कर सकते हैं. And also development at the national and international forums, business opportunities and ease of contact with friends and close ones. सोशल आइसोलेशन में काफ़ी कमी आ जाती है, लोकल कम्युनिटीज़ की जो पर्सपेक्टिव है उन्हें मज़ीद कुशादा कर देती है. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ ICT इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. थैंक यू वेरी मच. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sikandar Ali. Today my topic is role of ICT in agriculture. Role of information and communication technologies in the agriculture. Decision and support system. Information and communication technologies has a greater role as a decision support system to the farmers. ICTs help farmers to make good decision on the basis of the data. Through ICTs, farmers can be updated with the recent information about agriculture, weather, new varieties of crops, and new ways to increase production and quality control.
Using the ICTs, information and communication technologies, farmers can get the updated data about the agriculture, changing weather, new varieties of crop, and new ways to increase the production and the quality. Information and communication technologies can broadcast the precise and authentic information at right time to the farmers so that they can utilize it and get benefits from it. Basically, information and communication technologies experts can broadcast the precise information, instructions to sow the seeds and get the maximum benefits out of it. Farmers can utilize it for their own benefit. Widening market access. Information and communication technology has the greater potential to widen market horizon of farmers directly to the customers or other appropriate users for maximum benefits. Information and communication technologies allow farmers to communicate with the buyers throughout the world, whether they are the large companies, conglomerates, or the individual person who wants to buy the commodities of that farmer. This can improve a farmer's source of revenue. This will definitely increase the source of revenue for the farmers, empower farmers for making good decisions about the appropriate future crops and commodities. This will also allow farmers, this will also help farmers to make good decisions about their crop, whether he has to sow more than last year or he has to sow less than from last year, that kind of decisions. Strengthen and empower farming community. Information and communication technologies can help for strengthening farming communities through wide networking and collaborations with various institutes, NGOs, and private sectors. Information and communication technologies helps farmers in many ways. Information and communication technologies helps farmers in many ways, like the private institutes which delivers online lectures or held webinars, something like that. NGOs with their proper support, and the private sector which definitely helps farmer above and gives it the right information at the right time. Further farmers may enhance their Further farmers may enhance their own capacities through updated information and wide exposure to scientific farming and trading community. Furthermore, farmers can also enhance their own capacity on their own by using the information and communication technologies and getting the updated information about the scientific farming and from the trading community. Assalamualaikum sir, my name is Abdullah Javed. The topic of our group presentation is ICT in agriculture. The point I am covering is social media and e-extension. First I will be elaborating e-extension and then we will move to social media. अब सर e-extension होती क्या है? e-extension जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है एग्री एक्सटेंशन का. सर ये एक मॉडर्न और ज़्यादा एफिशिएंट वे है एक्सटेंशन सर्विसेज डिलीवर करने का. अब सर इसमें होता क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और फार्मर्स और जो लाइव स्टॉक होल्डर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करके. इस काम में डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं. सर एग्री एक्सटेंशन के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनमें ई लर्निंग, ई फार्मिंग और ई ट्रेडिंग शामिल है. ई लर्निंग में जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्सेज और ब्लेंडेड कोर्सेज हम फ्राहम करते हैं. और सर ई फार्मिंग में हम टेक्निकल एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. और सर ई ट्रेडिंग में हम ऑनलाइन ट्रेडिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग और एग्री मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इसके बाद सर हम चलते हैं टूल्स ऑफ ई एक्सटेंशन की तरफ. अब इसके टूल्स क्या होते हैं सर? सोशल मीडिया के थ्रू हम इसको कर सकते हैं सर. सोशल नेटवर्किंग कहते हैं उसे, जैसे कि सर एफबी के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू या माई स्पेस जैसे ऐप्स हैं. इसके अलावा सर कुछ वीडियो और फोटो शेयरिंग वेबसाइट्स भी हैं, जैसे सर फ्लिकर हो गया या यूट्यूब हो गया. इसके अलावा सर डिफरेंट ब्लॉग्स के थ्रू, माइक्रो ब्लॉग्स के थ्रू जो ट्विटर पे भी होते हैं और टम्बलर पे भी होते हैं. इसके अलावा सर गूगल और याहू वगैरह पर डिफरेंट डिस्कशन फोरम्स बने हुए हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि इस बारे में बातें करने के लिए बने हुए हैं या डिस्कशन करने के लिए बने हुए हैं. और सर इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिस की भी
फैसिलिटी अवेलेबल होती है अक्सर वेबसाइट्स पर। और सर ईमेल हो गया या इंस्टेंट मैसेजिंग वगैरह हो गया व्हाट्सएप वगैरह पर, इस तरह के ग्रुप्स भी होते हैं। अच्छा, ये होगी ई एक्सटेंशन। अब हम चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ। सोशल मीडिया क्या होता है? ये बेसिकली डिजिटल नेटवर्क होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं यूज़र जनरेटेड इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, जैसे कि ऑडियो, वीडियो या मल्टीमीडिया। इसके अलावा सोशल मीडिया की एक और डेफिनेशन जिसके मुताबिक जो सोशल मीडिया है वो वेब बेस्ड टूल्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से वर्चुअली इंटरेक्ट करने में मदद करते हैं। सोशल मीडिया के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं: कंटेंट, वेब और कम्युनिटीज। सोशल मीडिया के स्पेशल फीचर्स में पार्टिसिपेशन, ओपननेस, कन्वर्सेशन, कम्युनिटी और कनेक्टेडनेस शामिल है। इसका मतलब ये है कि आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करें और ओपनली कन्वर्सेशन करें। हमें एग्रीकल्चर की फील्ड में जो सोशल मीडिया से इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना सोशल मीडिया के फ़वाइद इस फील्ड में, और इसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें इस बात का एहसास दिलाना कि जो वो लोग अपने रिसोर्सेज जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू एक्सेस करें, या हमें स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है इसको मेंटेन करने के लिए सोशल मीडिया को। इसके अलावा जो है हमें इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। सोशल मीडिया हमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे ग्लोबल और नेशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर। इसके अलावा कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहाँ पर ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जो बगैर इंटरनेट के काम करते हों। इसके अलावा सोशल मीडिया हमें एक काफ़ी वाइड रेंज में स्टेक होल्डर्स को जमा करने में भी मदद करता है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें है कि एक इंसान से काफ़ी इंसानों तक पहुँचता है, इनके एक बंदे से काफ़ी बंदों तक पहुँचता है। अब सर हमें तरीके ढूंढने हैं कि हम सोशल मीडिया को एक्सटेंशन में कैसे शामिल करें। उसके लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत होगी जो कि एक टारगेटेड ऑडियंस तक हमने पहुंचानी है। हमें अपना मकसद एक टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाना है, उसके लिए हमें डिफरेंट वेज, डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल करनी होंगी। अब सर सोशल मीडिया पर कंटेंट डेवलपिंग के दौरान हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उनमें ये भी शामिल है कि कंटेंट जो है यूज़र और ऑडियंस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, और हमें चाहिए कि हम ऑथेंटिसिटी जो है कंटेंट की उसको बरकरार रखें। कंटेंट बेशक शॉर्ट हो लेकिन ऑथेंटिक हो। और जो विजुअल कंटेंट है सर वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि विजुअल कंटेंट जो है वो इंटरेक्शन का बायस बनता है। इसके अलावा सर जो प्रोजेक्ट्स जो फील्ड्स में होते हैं उनकी वीडियोस वगैरह डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर वो भी काफ़ी बेहतर रहती हैं इस काम के लिए, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के लिए। इसके अलावा सर काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्वेश्चनिंग करना भी इंटरेक्शन का काफ़ी अच्छा ज़रिया बनता है। इसके अलावा सर सोशल मीडिया कंटेंट जब आप पोस्ट करें तो उसकी रीच को बढ़ाने के लिए कुछ मेन की पॉइंट्स हैं जिनसे हम उस कंटेंट की जो रीच है उसे बढ़ा सकते हैं, जिनमें ये शामिल है कि हम जो अपना कंटेंट है वो उस टाइम पोस्ट करें जब मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है, जो ज़्यादातर ऑडियंस है हमारी, वो एक्टिव हो। इसके अलावा सर हमारे काफ़ी सारे फार्मर्स और काफ़ी तादाद जो है लोगों की वो इलिटरेट है, इनके वो पढ़ नहीं सकते, तो सर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो हमारी पोस्ट की रीच को बढ़ा सकता है। इसके अलावा सर हम अपने क्लाइंट्स और इंडिविजुअल्स को टैग कर सकते हैं पोस्ट में जो कि उनकी ज़रूरत के मुताबिक हों। इसके अलावा सर हम जो फार्मर्स और क्लाइंट्स हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा करके भी अपनी पोस्ट की इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं। सर, माय नेम इज़ अब्दुल्ला जावेद। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sitara Shahbaz and my topic is drones in agriculture. I will tell you about the agricultural drones. So first of all we will talk about the drones. Drones क्या है? मैकेनिकल टर्म्स में बेसिकली इनको ऑटोमेटेड एयरप्लेन्स कहते हैं, और ड्रोन्स को ऑफिशियली हम ऑटोमेटेड एरोनॉटिकल व्हीकल्स या फिर ऑटोमेटेड एयरप्लेन फ्रेमवर्क्स कहते हैं। जो ऑटोमेशन क्या है बेसिकली, यह फ्लाइंग रोबोट है, वो क्या करती है, कंट्रोल करती है कंट्रोल होती है रिमोट के ज़रिए या फिर फ्लाई करती है सेल्फ गवर्निंग में। और जो इसकी प्रोग्रामिंग कंट्रोल होते हैं वो फ़्लाइट प्लान्स होते हैं, और इनमें क्या इंस्टॉल होते हैं, फ्रेमवर्क्स इंस्टॉल होते हैं, और ये वर्किंग किसके ज़रिए करता है, इसमें सेंसर्स अवेलेबल होते हैं और जीपीएस होता है। जीपीएस से आपको पता चल जाता मतलब उसके वर्ड से आपको पता चल रहा है कि इसमें मैपिंग का काम हो रहा है, इसमें सर्वेइंग होती है। दूसरी चीज़, इसमें ड्रोन्स के ज़रिए स्प्रेइंग हो सकती है।
ड्रोन्स क्या है? फ्यूचर ऑफ फार्मिंग है. विद ग्रेटर रिफाइनमेंट्स इन ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड इम्प्लीमेंटेशन वी विल सी द एग्रीकल्चरल ड्रोन सेक्टर टेक ऑफ. ग्लोबल मार्केट इंसाइट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर ड्रोन्स जो होंगे उनकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी $1 बिलियन 2024 में. टॉप जो मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन थे वो थे DJI एवेल्यूएटेड ड्रोन्स और उनकी मार्केट वैल्यू थी $75 मिलियन और वो लॉन्च हुए थे 2016 में फर्स्ट टाइम. SZ DJI टेक्नोलॉजी को लिमिटेड और शेंज़ेन DJI साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है सबसे पॉपुलर थी ट्रेड नेम जिनका था DJI और स्टैंड क्या करता है वो डीजांग इनोवेशंस. और ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है जिसकी कंपनी के हेडक्वार्टर हैं शेंज़ेन में और गोंगडोंग में और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड है. और DJI वर्ल्ड लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं किस चीज़ की? कमर्शियल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के. अब आते हैं हमारे पास ड्रोन्स के फीचर्स. क्या है इसमें? ये तकरीबन 40 to 60 टाइम्स ज़्यादा फास्टर स्प्रेइंग करता है मैनुअल स्प्रेइंग से. मैनुअल स्प्रेइंग मींस जो आदमी खुद टैंक लेके फील्ड में स्प्रे करते हैं उससे ये 40 to 60 टाइम फास्टर करते हैं. और इसमें क्या फुल स्पेक्ट्रल बैंड कैप्चर होती हैं, जैसे कि जो लाइट स्पेक्ट्रम होता है ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए इसमें बैंड होता है. उसके बाद प्रिसीजन मैपिंग में क्या है इसके पास GPS ट्रैकर होता है. उसके बाद इसमें थर्मल इमेजिंग के लिए इसमें थर्मल कैमरास होते हैं जो कि इमेजिंग आपको देते हैं उसके लिए कि कहाँ पे पानी ज़्यादा है, कहाँ पे सॉइल का मॉइस्चर कम आ रहा है, उस हर चीज़ के लिए जिसका आपको ज़रूरत होती है. इसके बाद हमारे पास आते हैं ड्रोन्स की एप्लीकेशन में क्या होता है? सबसे पहले है मॉनिटरिंग में क्या मॉनिटर करता है? क्रॉप मॉनिटरिंग करता है, एनिमल मॉनिटरिंग करता है, बिल्डिंग और इक्विपमेंट मॉनिटरिंग करता है. फिर आते हैं हमारे पास एक्शंस में हमारे पास मैपिंग है, स्प्रेडिंग है, उसके बाद वाइल्ड गेम डैमेज है. उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन में आता है एनालिटिक्स. उसमें क्या है? डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ है, वाटर स्ट्रेस है, क्रॉप यील्ड है, सॉइल एरोजन है. फिर आते हैं मिससेलेनियस में रिसर्च है, स्मार्ट डाटा है और वेरिएबल रेट फर्टिलिटी है. अब हम देखेंगे कि ड्रोन्स एग्रीकल्चर के लिए कैसे यूज़ होते हैं. सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है मैपिंग और सर्वेइंग. मैपिंग से आपको खुद अंदाज़ा हो रहा होगा कि GPS में आप जैसे देखते हैं सबसे पहले इसमें हमारे पास इक्विप्ड होते हैं कैमरास, इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? स्पेक्ट्रम लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स में यूज़ होती है. उसके बाद इस इंफॉर्मेशन के बाद हमारे पास नॉर्मलाइज डिफरेंसेस वेजिटेशन इंडेक्स होते हैं जिसको NDVI हम कह सकते हैं, जिससे फार्मर्स प्लांट के हेल्थ के बारे में देख सकते हैं. और सर्वे बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं कि लोगों को खुद बाय मैन जाके देखना पड़ता है गर्मी में, धूप में. इसके बाद उनका टाइम बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कंज्यूम होता है, लेकिन ड्रोन्स के ज़रिए वो सर्वे को बहुत आसानी से कर सकते हैं. उसके बाद मैपिंग के लिए इसमें GPS है जो कि आपको एक पूरा मैप दिखा देगा कि आपको किस चीज़ के लिए क्या चीज़ रिक्वायर है, किस जगह पे रिक्वायर है. जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपना गूगल मैप खोल लेते हैं कि यहाँ पे आपको वो दिखा रहा होता है, यहाँ पे रोड्स हैं, यहाँ पे आपके पास स्ट्रीट्स हैं, यहाँ पे कैनाल्स हैं. इसी तरह जो ये GPS होगा वो आपको हर उस चीज़ को दिखाएगा जिसको आपको एग्रीकल्चर में या उस फील्ड में वो चीज़ रिक्वायर होगी. सेकंड चीज़ हमारे पास आ रही है क्रॉप डस्टिंग और स्प्रेइंग. डस्टिंग से आपको इस वर्ड से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि डस्टिंग मतलब हमने सफाई करनी है एक चीज़ की. कि अगर कोई एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करता है तो उसको इस चीज़ का पता होगा कि फील्ड्स में बहुत सी अनवांटेड ऐसे प्लांट्स और जड़ी बूटियाँ आ जाती हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जिनको ख़त्म करना होता है. और बहुत से पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं जैसे कि बहुत से कीड़े मकोड़े आते हैं जो फील्ड को हार्म कर सकते हैं. तो उसके लिए हम करते हैं स्प्रेइंग. तो स्प्रेइंग और डस्टिंग एक ही चीज़ आ जाती है कि डस्टिंग के लिए हम जैसे स्प्रे कर रहे हैं तो इससे हमें यील्ड को मेंटेन करने के लिए क्रॉप्स की जो रिक्वायर क्रॉप फर्टिलाइजेशन होती है या पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के लिए मैनुअली ना किसी भी आदमी को जाके स्प्रे करना पड़ता है कि वो पूरी फील्ड में एक तो घूमेगा, उसके मतलब इफ़ेक्ट कर सकता है, उसकी स्किन को कोई चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है. अगर वो पानी के अंदर जाके उसके पाँव जा रहे हैं पानी में या वहाँ पे किसी भी दवाई को लग गया है तो उस चीज़ को हार्म कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास ड्रोन्स हैं तो उसमें आप ड्रोन्स में बेसिकली लिक्विड को जो स्प्रे करना है वो रिज़र्व करने के लिए उसके अंदर रिजर्वायर्स हैं और उसके ज़रिए आप स्प्रे कर सकते हैं. एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, दूसरा आपकी मेहनत बचेगी. इस चीज़ के लिए आप ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हैं. थर्ड चीज़ हमारे पास आती है इरिगेशन मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसमें ड्रोन्स के अंदर थर्मल कैमरास लगे होते हैं जो कि आपको एक एक्सीलेंट किस्म का व्यू देते हैं कि आपका कहाँ पे पानी कम जा रहा है, कहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, कहाँ पे वाटर की पूलिंग हो रही है, वहाँ पे कहाँ पे सॉइल मॉइस्चर कम है, कहाँ पे ज़्यादा है उस चीज़ का. क्योंकि इस चीज़ से बहुत से सीवियर इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आपका जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है. दूसरा आपकी
क्रॉप की क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, हर चीज़ इफ़ेक्ट होती है। इसलिए जो थर्मल ड्रोन्स होते हैं उसमें फार्मर्स को जो थर्मल कैमरास हैं वो व्यू देते हैं कि कहाँ पे आपको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। फोर्थ चीज़ हमारे पास आ गई है लाइफ स्टॉक मॉनिटरिंग। इसमें क्या है कि लाइफ स्टॉक से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो लोगों के जो मवेशी होते हैं उनको चराने के लिए उनको आदमियों को पास खड़ा करना पड़ता है कि कोई भी जानवर कहीं गलत जगह पे ना चला जाए, कहीं कोई गलत चीज़ ना खा ले, कहीं पानी में ना चला जाए, गुम ना हो जाए, भाग ना जाए। इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अगर वो ड्रोन्स को यूज़ करें तो वो आराम से किसी भी आरामदेह जगह पे छाँव में बैठ के इस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं कि उनका जानवर कहाँ पे किस वक्त क्या कर रहा है। कि अगर कोई कुछ गलत साइड पे जा रहा है तो उसको फ़ौरन उस चीज़ को हैंडल कर सकती हैं। लेकिन एक आदमी को वहाँ पे मुसलसल खड़े रहकर ड्यूटी देना है, उसके लिए एक मुश्किल चीज़ होगी। अब हम देखेंगे कि ड्रोन्स के क्या बेनिफिट्स हैं फार्मिंग में या एग्रीकल्चर में। सबसे पहले वो क्या करते हैं, इंक्रीज यील्ड। उसमें क्या है कि वो इम्प्रूव करता है प्रोडक्शन को, एफिशिएंसी को, जो यील्ड की रेट है उसको हायर करता है। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा ना हो जाए, उससे पहले पहले हमें उनके बारे में आइडेंटिफाई करवा देता है ताकि हम उन पर ओवरकम कर सकें। उसके बाद जो क्रॉप हेल्थ है उसके बारे में अवेयर कर देता है, उसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में, ताकि कोई भी चीज़ अपने लिमिट से ज़्यादा ना हो जाए। सेकंड चीज़ हमारे पास सेव टाइम है। उसमें क्या है कि अगर आप खुद देखें कि कोई आदमी खुद जाके स्प्रे करे या फिर हम ड्रोन्स के ज़रिए स्प्रे करें तो कौन सी चीज़ में टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो टाइम है वो कंज्यूम कम होगा ड्रोन्स में, तो इसके लिए ड्रोन्स हमारे पास एक बेटर ऑप्शन रहता है कि वो हमारा टाइम भी बचा देता है। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या आ गई है, प्लान फॉर द फ्यूचर। उसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास प्रिसीजन ऑर्थोमॉजिक मैप्स जनरेट हो रहे हैं जो किस चीज़ में आपकी हेल्प करती हैं कि बेटर क्रॉप प्लानिंग के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं या फिर लैंड मैनेजमेंट के लिए भी वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या फार्मर्स एक्चुअली ड्रोन्स को यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 31% जो हैं 1.094 में से फार्मर्स जो हैं वो पोल करते हैं, कंसीडर करते हैं ड्रोन्स को 2018 में। उसके बाद जो 33% हैं वो ड्रोन्स को यूज़ कर रहे हैं, या तो खुद से यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। जो 21% हैं वो उसको खुद ऑपरेट करती हैं और जो 12% हैं वो किसी और थर्ड पार्टी के ज़रिए उसको ऑपरेट करते हैं। और जो 37% थे उन्होंने ड्रोन्स को 2018 में कंसीडर ही नहीं किया, लेकिन 31% जो थे उन्होंने ड्रोन्स को 2018 में कंसीडर कर लिया था। Thank you so much all for your precious time. Assalamu alaikum. My name is Rana Usman and today I am going to give a presentation on the topic of solar drip irrigation system. Firstly, solar drip irrigation system होता क्या है? Basically आबादी में जो मुसलसल इजाफा है और उसकी पानी की और बिजली की ज़रूरियात की वजह से दुनिया के पानी और नेचुरल रिसोर्स पर बहुत इफ़ेक्ट होता है। इसलिए ज़रूरी हो गया कि जो से बिजली के रवायती ज़राए हैं उनको मॉडर्न एनर्जी रिसोर्स और मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स के साथ तब्दील किया जाए ताकि हम बिजली की जो सी ज़रूरत है, खुराक की जो सी ज़रूरत है उनको पूरा कर सकें, यकीनी बना सकें और साथ ही हम अपने माहौल को आलूदा होने से महफूज रखें जो कि आलूदा हो रहा है। जैसे कि फील्ड में हम वाटर पंप चलाने के लिए एनर्जी रिसोर्स जो सा यूज़ करते हैं उसमें यूज़ होते हैं पेट्रोलियम, डीज़ल का इस्तेमाल हम करते हैं जो कि हमारे नेचर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती है। इसलिए बिजली की जदीद ज़राए मॉडर्न एनर्जी रिसोर्स और मॉडर्न इरिगेशन मेथड, जैसा कि मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स में आता है ड्रिप इरिगेशन, उसको जोड़कर मॉडिफाई करके खुराक की ज़रूरत, पानी की बचत, बिजली की बचत और साथ ही वक्त की बचत को सामने रख के उसको देखते हुए मॉडर्न एग्रीकल्चर में सोलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम उर्दू ज़बान में शमसी तवानाई से चलने वाला जदीद आबपाशी का निज़ाम कह सकते हैं। A guide to solar drip irrigation system benefits. हम सोलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इसलिए लगाते हैं कि हम पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, फसलों की पैदावार को बढ़ाएं, पैदावार भी बढ़े और साथ साथ हमारे माहौल को भी इससे कोई नुकसान ना पहुंचे, यानी कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और साथ ही साथ हम इससे काफ़ी प्रॉफिट भी हासिल करें। पानी जो है वो आबपाशी का एक अहम ज़रिया है। पानी की तहफ़्फ़ुज़ यानी उसकी सेफ्टी के लिए जो मॉडर्न एग्रीकल्चर में सोलर ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सोलर ड्रिप इरिगेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे बैठे रहें, कुछ मशीन्स के भरोसे छोड़ दें और कह दें कि बस हमारा काम यहीं ख़त्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें सभी पौधों का ख्याल रखना होता है जो फसलें लगाई होती हैं और साथ ही साथ हमें मशीनरी का भी ख्याल रखना होता है।
जौन से पौधे हमने लगाए होते हैं, जो ग्रोथ कर रहे होते हैं, हमें उसकी काफ़ी केयर करनी पड़ती है, उसको चेक करना पड़ता है कि इसके एरिया में, किसी फील्ड की साइड पे खाद की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, कहीं पानी की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, देखना पड़ता है कोई बीमारी तो नहीं लगी हुई, यानी कि हर तरीके से उसका ख्याल रखना पड़ता है। और साथ ही साथ जो उनसे पौधे हम लगा रहे होते हैं, जो उनसे अभी ग्रोथ में अभी लगा रहे होते हैं, सींच रहे होते हैं जिनको, अभी हमें उनका भी ख़ास ख्याल रखना होता है, उनकी भी केयर करनी पड़ती है। साथ साथ मौसम की पेश गोइयों का भी ख्याल रखना पड़ता है, जिसे हम वेदर न्यूज़ बोलते हैं, कि अब चेक करना पड़ता है कि हाँ, आज के दिन से लेके अगले हफ्ते तक क्या मौसम की सूरत हाल रहेगी, उस हिसाब से बाकी हमें अपना प्रोसेस कंटिन्यू करना होता है। सोलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को जो पहले डिज़ाइन किया गया था, वो खट्टे फल यानी अंगूर, जैतून, उसके हवाले से, उसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। जो उनसे पुरानी आबपाशी है उसकी निस्बत जो मॉडर्न एग्रीकल्चर में सोलर ड्रिप इरिगेशन की जो उनसी है आबपाशी, इसमें हम फलों की ग्रोथ में भी बहुत बेहतरी हासिल कर रहे हैं, पानी की बचत भी कर रहे हैं, बिजली की बचत कर रहे हैं, साथ साथ वक्त की बचत भी कर रहे हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन अब इसमें प्रोग्रेस देख के जो गवर्नमेंट है और काफ़ी बाकी प्राइवेट जो कंपनीज़ है वो काफ़ी इसमें गौर व फिक्र कर रही है, ताकि किसानों के लिए आसानी पैदा हो सके। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो उसमें होता कुछ यूँ है कि जो सोलर पैनल्स होते हैं वो डायरेक्टली सन से, सूरज से हीट एनर्जी लेते हैं, और उसके नीचे जो पैनल्स होते हैं उनके नीचे एक रोलर कंट्रोल होता है, जिससे हम उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डायरेक्शन दे सकते हैं पैनल्स को, कि किस तरफ जहाँ पे सूरज की शुआएँ आ रही होंगी उस तरफ इसको हम मूव कर सकते हैं। देन वो सारी एनर्जी जाती है MPPT के अंदर, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। वहाँ पे ये जो एनर्जी आई होती है, ये होती है सीधा वॉट्स में होती है, तो उसको ये कन्वर्ट करती है एम्पेयर में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफ़र करती है बैटरी में, जहाँ पे बैटरी मतलब ये एम्पेयर में बैटरी में कन्वर्ट करती है, जो बैटरी आगे फिर सारा प्रोसेस कंटिन्यू करती है, जैसे कि पंप चलाना, बाकी उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो इसी हम बैटरी से गेन करते हैं। पंप से तो पहले आता है पंप कंट्रोलर, जिसमें ये सारा कुछ हम पंप सारे कंट्रोल करते हैं, चाहे जैसे वाटर पंप हो, बाकी पंप जो उनसे आगे जो प्रेशर के लिए पंप यूज़ करते हैं वो हो, और जो सा मोटर पंप होता है जो जिससे हम पानी भरेंगे, वो सारा कुछ हम इसी कंट्रोलर से यूज़ करते हैं, यहाँ से ऑपरेट करते हैं। देन आगे एक होता है फ़िल्टर से सारा कुछ पानी हम फ़िल्टर करते हैं, आगे ये सारा फर्टिगेटेड टैंक्स में जाता है, जहाँ पे खादें मिक्स करती हैं, सारा कुछ प्रोसेस करती हैं, खादों का भी, पानी का भी। उसके बाद ये आगे प्रेशर के साथ, पानी के प्रेशर के साथ हम पाइप्स के थ्रू उसको फील्ड्स में आगे भेज देते हैं। तो बाकी वहाँ पे जो पाइपलाइंस होती हैं, पाइपलाइंस का जो नेटवर्क होता है एक, उससे ये ड्रॉप बाय ड्रॉप हम पानी क्या कहते हैं ट्रांसफ़र कर देते हैं पौधों तक, उनकी रूट्स तक। कंपोनेंट्स ऑफ सोलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। सोलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की जो वर्किंग है वो डिपेंड करती है इसके कंपोनेंट्स पे। जैसे कंपोनेंट्स आते हैं वो होते हैं कुछ सोलर पैनल, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर से MPPT बोलते हैं, पंप कंट्रोलर, वाटर पंप, फिल्टर, फर्टिगेटेड टैंक्स और ड्रिप सिस्टम। फर्स्टली हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सोलर पैनल को। ये जो सोलर पैनल है ये हमारा एनर्जी का सोर्स है, जो कि एनर्जी जनरेट करता है अपने वाटर पंप को फील्ड पे, जो हम वाटर पंप यूज़ करने हैं उसको चलाने के लिए, और बाकी इक्विपमेंट्स जो से हैं उनको चलाने के लिए। सोलर पैनल को हम कनेक्ट करते हैं MPPT से, जिसे हम मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर बोलते हैं, जो कि वॉल्ट्स जो है उसको एम्पेयर में कन्वर्ट करता है, जिससे जो बिजली हासिल होती है उसे हम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर इलाके जहाँ पे वापडा की जो बिजली है उसकी फराहमी मुमकिन नहीं है, तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा मुफीद है सोलर सिस्टम। सोलर पैनल से हम पैसों की बहुत बचत कर सकते हैं, और आसान तरीके से पैसों की बचत कर सकते हैं, और अपना जो ड्रिप इरिगेशन का जो प्रोसेस है सारा उसको चला सकते हैं बआसानी। जो सोलर पैनल की वोल्टेज होती हैं वो हमारे इस्तेमाल पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि अगर हमने वाटर पंप्स चलाने हैं जो उनसे बड़े हैं, ज़्यादा वोल्ट्स पे रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारा एरिया जो सा है जहाँ पे हमने जिस फील्ड पे हमने ड्रिप इरिगेशन करनी है, और जितनी हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, अगर वो मैच ज़्यादा है तो हम जो सोलर पैनल्स हैं वो बड़े लगाएंगे, सोलर पैनल्स बड़े लगाएंगे और ज़्यादा वोल्टेज वाले लगाएंगे। जो से गवर्नमेंट हमें रिकमेंड करती है कितने वोल्टेज वाले हम सोलर पैनल्स लगाएं, वो होती है 200 वाट से लेके 5 किलो वाट तक की जो उनसे कैपेसिटी है ना सोलर पैनल्स की, ये हमें गवर्नमेंट रिकमेंड करती है कि इतने कैपेसिटी तक के आप यूज़ कर सकते हैं सोलर पैनल्स। जो सेकंड कंपोनेंट ऑफ सोलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर, MPPT जिसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर, जैसा कि अगर हमारे पास एक 60 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चीप होगा और सस्ता होगा हमारे लिए, और काफ़ी रिलायबल भी होगा कि अगर इसको यूज़ करना बहुत आसान होगा। और उसकी एक अच्छी बात ये होती है कि इस पर एक डिस्प्ले लगा होता है, जैसे कि जिस पे हम वॉट जो है उसका इनपुट भी देख सकते हैं, उसका आउटपुट भी देख सकते हैं। ये सोलर से भी चल सकता है, बैटरी से भी चल सकता है, ये मतलब कि दोनों चीज़ों से चल सकता है। और सबसे अच्छी बात ये भी है इसमें कि ये बगैर बैटरी के भी चल सकता है डायरेक्ट ही।
जो इसका मेन प्रोसेस ऑफ वर्किंग है वो ये है कि ये वॉल्स को डाउन करके एम्पेयर को बूस्ट करता है। और जो सा ये इसकी जो सा वर्किंग एक और ये भी है कि ये डायरेक्ट जो सोलर से पैनल से जो सा ये वॉट लेता है ना, ये सिर्फ उतने वॉट्स लेता है जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और ये आगे बैटरी को भी उतने एम्पेयर सप्लाई करता है जितनी की बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। इन शॉर्ट अगर हम बात बोलें तो ये अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली एम्पेयर लेता है, वॉट्स लेता है, और बैटरी को उतनी ही एम्पेयर सप्लाई करता है जितनी उसकी ज़रूरत है बैटरी की। ऐसा नहीं करता कि अगर जैसे बैटरी फुल हो गई है, उसकी मतलब नीड्स पूरी हो गई हैं, उसको और एम्पेयर नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं करता कि बार बार उसको मतलब कि एनर्जी सप्लाई करी जाए। नहीं, जितनी अगर बैटरी की रिक्वायरमेंट जब पूरी हो गई है तो ये भी अपना वर्किंग वहीं रोक देता है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो सोलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का है वो है पंप कंट्रोलर। सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये सोलर ऑपरेटर है और इस्तेमाल करने में बहुत आसान है। इसमें हम एक वक्त में 24 वेल्स चला सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और ये भी इसमें मतलब कि हमारी मर्ज़ी है कि हम एक टाइम में 2 वेल चलाएँ, 4 वेल चलाएँ, जितनी मर्ज़ी चलाएँ, ये हमारे पे डिपेंड करता है। इसको हम ऑटो भी कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं। इसको साथ साथ ये अपने हिसाब से टाइम पीरियड से कंट्रोल कर सकते हैं इसको हम। इसका एक और फीचर ये है कि ये इसमें रेन सेंसर भी है और इसमें रेडिएशन सेंसर भी है। इसमें ऑटो फ्लैशिंग भी है, जिससे फ़िल्टर्स खुद ही साफ़ हो जाएंगे। उन्हें खोलने और हाथ लगाकर हमें खुद ज़रूरत नहीं है कि उसे साफ़ करें, खुद ब खुद वो ऑटो फ्लैशिंग हो जाती है। और नेक्स्टली जो सा फर्टिगेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी हम इससे ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र्स को जो मिक्स करने का प्रोसेस है, जो कि आगे सप्लाई होगा इरिगेशन के लिए, तो जो पानी में मिक्स करके इसको सप्लाई करना है आगे, तो वो भी एज अवर रिक्वायरमेंट हम पंप कंट्रोलर से उसको कंट्रोल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ऑटो टाइम भी इस पर सेट कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिकली अगर हम चाहें कि ये दोपहर को 3 या 4 बजे खुद ही चल पड़े, तो इसमें पंप कंट्रोलर से हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली टाइम सेट कर देंगे कि दोपहर को 3 या 4 बजे जब भी रिक्वायरमेंट हो खुद ही ये ऑन हो जाए। इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि अगर रेडिएशन बहुत कम है और जो उससे हमने टाइम सेट किया है उसके मुताबिक अगर टाइम हो गया इरिगेशन का, तो इसके बावजूद कि इरिगेशन का टाइम हो गया तो ये इरिगेशन नहीं करेगा। और अगर टेंशियोमीटर इसको सिग्नल देता है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो गया, बेशक इरिगेशन का टाइम नहीं हुआ, तो ये पंप कंट्रोल जो कंट्रोलर है ये ऑन हो जाएगा खुद ब खुद ही। इन शॉर्ट ये मैनुअल भी है, ये ऑटो भी है। टाइम के अलावा हम इसको लीटर्स के हिसाब से भी ऑटो कर सकते हैं। जैसा अगर हम सेट कर दें कि हमारी जो फील्ड है, टोटल फील्ड है, उसको 1000 लीटर पानी सप्लाई हो, तो जैसे ही 1000 लीटर सप्लाई हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ये जो मॉडर्न एग्रीकल्चर, इसमें जो पंप कंट्रोलर्स हैं इनका बहुत अहम रोल है। वाटर पम्प जिसको हम पानी की मोटर भी कहते हैं। ये वाटर पम्प जो सा हम फील्ड में यूज़ करते हैं स्पेशली डिज़ाइन होता है, जो कि कम वोल्टेज से भी अच्छा काम दे सकता है और प्रॉपर्ली वर्क कर सकता है। ये वो बिजली से वर्क करता है जो सा हम सोलर सिस्टम से वोट से जो कन्वर्ट होकर एम्पेयर में होता है, तो ये वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है पम्प। ये जो सा वाटर पंप है ये बासानी 6500 से लेकर 7000 लीटर तक का पानी बासानी 8 घंटों की जो एवरेज है उसके साथ भर लेता है एक दिन में। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है सोलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का वो है फ़िल्टर्स। ये किस तरह का या किस साइज़ का होना चाहिए, ये हमारे डिपेंड करता है बजट पे, हमारे यूज़ पे, हमारे एरिया पे। अगर हम फ़िल्टर्स यूज़ नहीं करते तो जो ड्रिप इरिगेशन का प्रोसेस है वो चॉप कर जाता है, मतलब कि यानी ख़राब हो जाता है। वैसे फ़िल्टर्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन जो आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं वो हैं कुछ सैंड, जैसे कि सैंड फ़िल्टर है जिसे हम प्राइमरी फ़िल्टर भी बोलते हैं। लेकिन जब हम सैंड फ़िल्टर यूज़ करते हैं जिसे प्राइमरी फ़िल्टर बोलते हैं, तो उसके साथ साथ हमें डिस्क फ़िल्टर भी यूज़ करना पड़ता है। बेसिकली जो वर्क है ये सैंड फ़िल्टर्स का या फिर प्राइमरी फ़िल्टर का, जो उनका मेन वर्क ऑल ओवर फ़िल्टर्स का जो मेन वर्क है वो ये होता है कि जैसे अगर हमने जो पानी ले रहे हैं तालाब से ले रहे हैं या फिर हम ट्यूबवेल से ले रहे हैं, मतलब अंडरग्राउंड वाटर ले रहे हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, एल्गी होते हैं, काफ़ी सैंड पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे प्रोसेस में ड्रिप इरिगेशन के प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, जिससे हमारी पाइप लाइन ख़राब हो सकती हैं। तो ये फ़िल्टर्स ये वर्क करते हैं कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं सारा कुछ उसको अलग करके हमारे जो उनसा पानी है जो उनसा हमने यूज़ करना है प्रोसेस में अपने, तो उसको नीट एंड क्लीन कर देती है। तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि बच जाती हैं इस सैंड फ़िल्टर से भी, तो उसके लिए आगे यूज़ करते हैं हम डिस्क फ़िल्टर, जो कि जिसमें होते हैं कि स्मॉल सिलिकॉन पार्टिकल्स होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को वहीं रोक लेते हैं, आगे जाने नहीं देते फिल्टर्ड प्लांट के अंदर, जिससे पानी बासानी साफ़ हो जाता है। अगर हम इस फ़िल्टर की मेंटेनेंस की बात करें तो इसकी मेंटेनेंस कुछ ऐसे है कि साल 1.5 साल बाद अगर इसमें जो मौजूद जो उनसे सिलिकॉन पार्टिकल्स होते हैं उनको बदलना होता है। और अगर हम इनको धोने की बात करें तो ये हम 2 से 3 दिन के वक्फे से बासानी धो सकते हैं।
जो नेक्स्ट कंपोनेंट है सोलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का वो है फर्टिगेटर टैंक। फर्टिगेटर टैंक बेसिकली एक वाटर टैंक होता है जिसको हम पानी से भरते हैं, जिसको बेसिकली उसका सोर्स होता है उसको भरने का, वो डायरेक्टली हम तालाब से भर सकती हैं। फ़िल्टर शुदा पानी जो उनसे फिर अपने फ़िल्टर से हम उसको जो उनका क्लीन नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद या फिर हम ज़मीनी पानी डायरेक्ट मोटर लगा के इसमें भर सकते हैं फर्टिगेटर टैंक्स में। फर्टिगेटर टैंक में जो सा साफ़ पानी होता है उसमें हम फर्टिलाइज़र्स जो उनकी खादें होती हैं उनको हम ऐड करते हैं, जो कि हमारा जो ड्रिप इरिगेशन का प्रोसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा मुफीद है, हमारे लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल ऐसे है कि इसमें ये जैसे हम वाटर सप्लाई करती हैं अपनी ड्रिप इरिगेशन के प्रोसेस में अपने प्लांट्स को या अपनी जो क्रॉप्स हैं उसको, तो साथ ही साथ जो फर्टिलाइज़र्स हैं खादें हैं वो भी साथ साथ पानी के साथ ही साथ उसमें सप्लाई हो जाती हैं। तो इसका प्रोसेस ये फ़ायदा हमें होता है कि ये काफ़ी स्मूथली पाइपलाइंस में गुजर जाती हैं, ड्रिप इरिगेशन का प्रोसेस काफ़ी इजीली कर लेती हैं और इसमें काफ़ी हमारी वक्त की बचत हो जाती है। वक्त की बचत ऐसे होती है कि अगर हम वाटर की सप्लाई अलहदा करती हैं और खादें जो सी फर्टिलाइज़र बाद में अलहदा देती हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, हमें 2 प्रोसेस करने पड़ जाती हैं। और ये इसका ये फ़ायदा है कि ये 2 प्रोसेस को हमने एक प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया है और हम खादें भी जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो भी और वाटर की सप्लाई भी हम दोनों एक साथ अपने यूज़ के मुताबिक उनको फ़राहम कर लेते हैं अपनी फील्ड्स को। लास्ट कंपोनेंट ऑफ सोलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वो है ड्रिप सिस्टम। बेसिकली ड्रिप सिस्टम पाइपलाइन का एक नेटवर्क है, या फिर बोलें ड्रिप सिस्टम एक तरह का माइक्रो इरिगेशन है जो कि ज़मीन की सतह के ऊपर और सतह के नीचे दफन होने वाले जो उनसे पौधे होती हैं उनकी जड़ें जिन्हें हम रूट्स बोलते हैं उन तक पानी पहुँचाता है आहिस्ता आहिस्ता करके, या फिर बोलें ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स। आमतौर पर जो पाइपलाइन होती है उस पर 4000 तक ड्रिप पॉइंट्स होते हैं जो कि हर 30 सेंटीमीटर के वक्फे पर होती हैं। इनमें एक ऑटो क्लीनिंग का फ़ीचर होता है, जैसे कि जो सुराख होते हैं ड्रिप पॉइंट्स जो जिसे बोलते हैं वो मिट्टी या किसी गंदगी की वजह से बंद हो जाते हैं, तो ये खुद की सफाई खुद कर लेती है। वाटर प्रेशर जो उनसा मोटर से आ रहा होता है उसकी हेल्प से ये ऑटो क्लीनिंग का प्रोसेस यूज़ कर लेती है। अगर ये बोला जाए कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है तो लेकिन ये साथ साथ ये बात भी बोली जाएगी कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और साथ ही साथ इसकी काफ़ी ज़्यादा केयर भी करनी पड़ती है। और जो ये पाइप्स का जो उनसा टाइम पीरियड होता है ये डिपेंड करता है इसके मतलब कि यूज़ पे, और उसके अलावा जैसे कि अगर काफ़ी ज़्यादा जगह ऐसी है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप है तो वहाँ पे इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा कम हो जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ सोलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। सोलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अगर फ़ायदों की बात की जाए तो इसका बहुत अहम किरदार है मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंदर, और आज के किसान इससे बहुत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। खुराक की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत मुफीद तरीका है इरिगेशन का। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से हम जो से नेचर रिसोर्सेज एनर्जी रिसोर्सेज हैं लाइक डीजल पेट्रोलियम और बाकी उनको हम सेव रख सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में बोला जाए तो ये एक बहुत ही जदीद तरीका है आबपाशी का। इसमें हम पानी के इस्तेमाल को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम पानी की बचत कर सकते हैं और कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और इससे हम साथ ही साथ बिजली की बचत कर सकते हैं और हम माहौल को आलूदा होने से बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सोलर सिस्टम से मतलब सोलर सिस्टम से हम एनर्जी गेन करते हैं। इसमें कोई हमें रवायती अंदाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि मोटर चलाने के लिए डीज़ल का यूज़ करना है पेट्रोलियम का, जो कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन भी क्रिएट करती है और उसके साथ ही साथ एयर पोल्यूशन भी क्रिएट करती है। और हम फसल की पैदावार में इजाफ़ा कर सकते हैं और अच्छी फसल हासिल कर सकती हैं, और हर फसल को बराबर का पानी भी फराहम कर सकती हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक, और साथ ही साथ जो उनकी खादें हैं फर्टिलाइज़र्स हैं वो भी इस ड्रिप इरिगेशन के प्रोसेस से उसको इजीली हम फराहम कर सकते हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक, और साथ ही साथ हम फसलों को ख़राब होने से भी बचा सकते हैं इस तरीके से, और साथ ही साथ हम वाटर एवापोरेशन से भी बच सकते हैं, क्योंकि जो पानी जो सा हवा में उड़ जाता है गर्मी की बाइस, तो हम इसको पानी इस तरह फराहम करेंगे कि ये उड़ने का मौका ही ना आए, सीधा ही ये अपनी रूट्स में जज़ब कर ले। एक फ़ायदा इसका ये भी है कि हम इससे वक्त की बचत कर सकती हैं और इस पर लेबर भी कम ले सकती हैं। सो थैंक यू सो मच। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Hafiz Umair. I will discuss about framework of ICT in agriculture. On review of the above mentioned ICT initiatives, a common framework has found to disseminate agriculture related information. Farmers are facilitated by field workers who coordinate communication between agriculture experts and farmers.
However, farmers can directly access to agriculture information system. Agriculture experts are usually contacted only when required genuinely, and coordinators are able to answer the queries. Use of ICT in agriculture is mainly to disseminate agriculture related information to the farmers and to trade their produce in Pakistan. The information broadcasting via online or offline, but internet is a major media required for information inflow. Agriculture experts, coordinators, farmers. Internet agricultural information system, daily market prices, weather updates, crop advisories, soil data, new technologies related to agriculture. The ICT initiatives in Pakistan are based mainly to disseminate information. In the current framework of ICT's field coordinators work as a link between farmers and information system. Sometimes farmers are unable to browse information from the system or comprehend the system. Field coordinators may send real farm situation to the expert or information system relating to agriculture for their advices. This framework may be improved by including more advanced and high-tech approach in agriculture sector. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Salman Anwar, registration number 2020 AG3446. Zarai Taraqqiyati Bank Limited. Role of ZTBL in agriculture. VN. Zarai Taraqqiyati Bank Limited is the only agri-financial institution which is uplifting agriculture sector of the country through provision of credit facilities and dissemination of the latest agriculture information to the farming communities. Since its establishment, the bank is continuously introducing latest agriculture information and creating awareness among farmers about latest agriculture technologies to enhance farm productivity. In order to disseminate innovative agriculture practices and production technology packages for various crops, technical knowledge and professional skills to the farmers to increase their productivity and income, the bank has been launching following initiatives. Agri Technology website, a website of technology for agriculture available on www.atd.ztbl.com.pk, was launched on November 032015 to disseminate latest agriculture information to the farmers. Website parameters, production technologies of different major field crops, vegetables and fruits. Brochures on crop, list of progressive farmers, case studies, weather forecast, agri outlook, agri news, agri business supplement, Kisan Zone Services, ZTBL Farmers Portal. The bank has Farmers Portal, which is available on ZTBL website at link where farmers can get information on farming features on free of cost basis. Kisan Portal facilities, weather update, soil information and diagnostics, plant tips, pest and insecticides information tips, fertilizer information, livestock and aquaculture, disease and remedy information tips, farmer updates. These features are to be uploaded on seasonal basis and refreshed on weekly basis as well on the website of the bank. However, farmers can access this facility and listen pre-recorded agriculture information through IVR as well as SMS at any time.